Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our 7th session for English speaking, writing and reading skills. In this session, we are going to discuss present perfect tense. In the previous two sessions, we have discussed simple present tense, we have discussed present continuous tense, we have done enough practice also. So in this session, let's start with present perfect tense. Okay? Now friends, let's begin with present perfect tense. Let's see the formula first of all. For positive sentences, we have subject plus has or have plus third form of the verb plus object. In case of present perfect tense, we always use third form of the verb, right? What is the third form of the verb? What is the first form of the verb? That is basic verb. Second form of the verb is known as past tense, and the third form of the verb is known as past participle. Okay, so subject plus has or have plus third form of the verb and object. Negative, subject plus has have with note plus third form of the verb plus object. Okay, similarly questions has or have plus subject plus third form of the verb plus object. Now the main question is where do we use has, where do we use have? Okay, so we use has with third person singular. Third person singular means he, she, it, name of a person. Okay, we have discussed this thing so many times. So we use has with third person singular, right? In remaining cases we use have. Okay, let's read some of the sentences over here. I have worked. You have worked. He has worked. She has worked. It has worked. We have worked. You have worked. They have worked. Okay. Now let's read out short forms. I've, you've, he's, she's, we've, you've, they've. So I've worked, he has worked, she has worked, you have worked, we have worked, you have worked, they've worked. Okay, the negative sentences. I haven't, you haven't, I haven't worked, you haven't worked, he hasn't worked, she hasn't worked, it hasn't worked. Similarly, let's say questions. Have I worked? Have you worked? Has she worked? Has he worked? Has it worked? Have we worked? Have you worked? Have they worked? Okay. Now, how do we make the short answers? Now, let's see questions with short answers. Okay. Now, have I worked? Yes, you have. Or no, you haven't. Have you worked? Yes, I have. Or no, I haven't. Has she worked? Yes, she has. Or no, she hasn't. Has he worked? Yes, he has. Or no, he hasn't. Have we worked? Yes, you have. Or no, you haven't. Okay. Have they worked? Yes, they have. Or no, they haven't. Okay. So that's very simple. Okay friends, let's understand the difference among simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. We take a simple example. I do my homework every day. इसका क्या मतलब हुआ? मैं अपना होमवर्क रोज करती हूँ या मैं अपना होमवर्क रोज करता हूँ. ओके, तो ये जो बात हुई वो रोज की बात हुई, राइट? दैट मीन्स योर एवरीडे एक्शन और योर हैबिट और व्हाटएवर यू कैन से. ओके, मैं अपना काम होमवर्क, मैं अपना होमवर्क रोज करती हूँ. Okay, now that is in simple present tense. Present continuous tense, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ. That means इस particular moment में, इस particular time पर अभी अभी मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, right? मैं अपना होमवर्क करती हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ. और the third one is present perfect tense. That means I have done my homework. That means मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. Okay, so तीनों में क्या difference है? पहला कह रहा है मैं अपना होमवर्क रोज करती हूँ, दूसरा कह रहा है मैं अपना होमवर्क अभी कर रही हूँ, और तीसरा बोल रहा है मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ, राइट? सो हिंदी में ये जो तीनों सेंटेंसेस मैंने बोले, ये सब इंग्लिश में क्या हुए? आई डू माई होमवर्क एवरी डे, आई एम डूइंग माई होमवर्क एंड आई हैव डन माई होमवर्क. ओके, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, जहां पर खत्म होने की फीलिंग है लेकिन अभी अभी खत्म होने की फीलिंग है, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं.
राइट? अभी अभी खत्म होने की फीलिंग, लेकिन काम हो चुका है, लेकिन फीलिंग क्या है? अभी खत्म हुआ है. ओके, जस्ट, or we can say already. Okay, let's take this we take on some examples. I have seen this film over here. मैंने ये फिल्म देखी है. ओके, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बरसों पुरानी बात नहीं कर रही, रिसेंट बात कर रही है. फिर बल्लू हैज फिनिश्ड हिज फूड. बल्लू ने अभी अपना खाना खत्म कर दिया है और इस वक्त वो कॉफी पी रहा है. मतलब पहले उसने खाना खा लिया है, अब वो कॉफी पी रहा है. ठीक है, तो बल्लू हैज फिनिश्ड हिज फूड, नाउ ही इज ड्रिंकिंग कॉफी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई बॉट अ गिफ्ट फॉर तानिया. मैंने तानिया के लिए गिफ्ट ले लिया है. अभी यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई बाय अ गिफ्ट फॉर तानिया. ये रोज की बात नहीं है कि आप तानिया के लिए गिफ्ट लेते हैं, राइट? या तो ऐसा होगा कि मैं तानिया के लिए गिफ्ट खरीद रही हूँ, मतलब आप किसी शॉप पर खड़े हैं और वहां पर आप इसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं तानिया के लिए, तो आई एम बाइंग अ गिफ्ट फॉर तानिया. लेकिन अगर आप शॉप से बाहर निकल गए हैं, अभी अभी निकले हैं या पार्टी में पहुंच गए हैं या किसी और को बोल रहे हैं कि भाई मैंने तानिया के लिए गिफ्ट खरीद लिया है. ओके, दैट मीन्स आपने ये काम कर लिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू टेकन इनफ मनी फॉर शॉपिंग. आप शॉपिंग जाने के लिए रेडी हैं और अपने फ्रेंड से या साथी से पूछ रहे हैं कि आपने पूरा पैसा ले लिया है कि नहीं शॉपिंग के लिए. ओके, इसका क्या मतलब हुआ? आप शॉपिंग जाने के लिए अभी रेडी हैं. ओके, और आप शॉपिंग जाने ही वाले हैं, उसके पहले ये कंफर्म कर रहे हैं कि पैसा पूरा है कि नहीं पास में. ओके, सो हैव यू टेकन इनफ मनी फॉर शॉपिंग. आपने शॉपिंग के लिए पूरा पैसा ले लिया है कि नहीं. ओके, शी हैजंट फिनिश्ड हर होमवर्क. उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं फिनिश किया है. ओके, इस वक्त की हम बात कर रहे हैं, उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है. ओके, मम्मा एंड ग्रैंडमा हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड. मम्मी और दादी माँ ने पहले से ही खाना बना लिया है, राइट? तो अभी रिसेंटली बात कर रहे हैं हम, कुछ थोड़ी देर पहले की, घंटा डेढ़ घंटा कुछ पहले की, कि भाई मम्मी और दादी ने खाना बना दिया है, राइट? सो अगर आप चाहें तो खाना खा सकते. कहने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों ने खाना बना दिया है. इट्स रेडी. इफ यू विश यू कैन स्टार्ट. ओके, फिर इट हैजंट रेन टुडे. आज बारिश नहीं हुई है. जब भी हम टुडे वर्ड यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, क्योंकि आज की फीलिंग आ रही है, रीसेंट डे, राइट? तो इट हैजंट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हुई है. हैव आई बॉट ऑल द फ्रूट्स. क्या मैंने सारे फ्रूट्स खरीद लिए हैं? द लेडी इज आस्किंग क्वेश्चन herself कि मैंने सारे फ्रूट्स खरीद लिए हैं क्या, लाइक मे बी वो सोच रही हो कि और कुछ लेना बाकी तो नहीं रह गया है. ओके, now friends, let's see where do we use present perfect tense. We use present perfect tense when we want to talk about unfinished actions that started in the past and continue to the present. Okay, for example, I have lived in Delhi for 6 years. अब यहाँ पे क्या मतलब है कि मैं 6 साल पहले दिल्ली में रहना शुरू हुआ था और अभी भी मैं दिल्ली में रहता हूँ. I began to live there 6 years ago and still I live there. Okay, 6 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ, रह रहा हूँ. Okay, now that is an unfinished action. Okay, मतलब कोई काम पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, मतलब जो एक्शन है वो अनफिनिश्ड है. ओके, पास्ट में शुरू हुआ लेकिन कंटिन्यू टू द प्रेजेंट. तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 6 years. Similarly, you can take more examples. I have taught mathematics for 10 years. I have worked with ABC company for 5 years. Okay, ABC company के साथ में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ. Okay, something like that. फिर we use the present perfect to say an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important, right? हम कब present perfect use करते हैं? For an action happened at an unspecified time before now. कोई टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं है, टाइम का कोई रेफरेंस नहीं दिया है
और एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यहां पर मैंने आपको एक यूज बताया, दैट इज द अदर यूज। वी कैन नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफाइड टाइम एक्सप्रेशन सच एज yesterday, 1 year ago, last week, when I was a child, when I lived in India, at this moment, that day, one day। ऐसे कोई भी जो एक्सप्रेशन से हम यूज नहीं करते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई हैव बीन ऑन टेलीविजन 3 times, मैं 3 बार टीवी पर आया हूँ। अब ये पिछले साल आए हैं, पिछले वीक आए हैं, 1 year ago, लास्ट वीक, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको टाइम स्पेसिफाई नहीं करना। टाइम स्पेसिफाई करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा, राइट। वी कैन नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विथ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन। ओके, जैसे अगर आपने बताया कि आई हैव बीन ऑन टेलीविजन यस्टरडे, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं कल रात को टीवी पर आया था, ये गलत है। ओके, अगर आपको ऐसा बोलना था, आप क्या बोलेंगे? आई वॉज ऑन टेलीविजन यस्टरडे, मैं कल टीवी पर था। ओके, आई हैव बीन ऑन टेलीविजन 3 times और आई हैव बीन ऑन टेलीविजन यस्टरडे, आई हैव बीन ऑन टेलीविजन यस्टरडे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई हैव बीन ऑन टेलीविजन 3 times मीन्स मैं 3 बार आया हूँ। कब आया हूँ, दैट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ओके, एग्जैक्ट टाइम इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट यूज these sort of expressions, suppose yesterday, 1 year ago, last week, right? We can take some more examples. I have done my cooking course, मैंने अपना cooking course कर लिया है। कब किया है, not at all important। मैंने cooking course कर लिया है और अब मुझे cooking आती है, मैं cooking अब कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। ठीक है, तो I have done my cooking course। I have seen that movie 10 times, मैंने ये पिक्चर है वो 10 बार देखी है। कब देखी है, उसे वो आपको मेंशन नहीं करना है। अगर आपने वो मेंशन किया है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, आपने एक बारी पिछले वीक देखी है, फिर एक बारी पिछले साल देखी है, एक बारी आपने मे बी 1 महीना पहले देखी है, तो उसके लिए आपको अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना पड़ेगा। जैसे आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक, मैंने ये जो मूवी है वो पिछले हफ्ते देखी है। ओके, तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आप बात कर रहे हैं तो आपको टाइम स्पेसिफाई नहीं करना है, और अगर आप टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप सिंपल पास्ट में बात कर रहे हैं। ओके, जो डिफरेंस है सिंपल पास्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का वो हम डिटेल में बाद में और समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हुए आपको टाइम स्पेसिफाई नहीं करना है। ओके, आई थिंक आई हैव मेट राम वंस बिफोर, मुझे ऐसा लगता है कि राम को मैं पहले भी मिली हूँ। ओके, कब, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन गुजरात, गुजरात में बहुत सारे भूकंप आए हैं। कब आए हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आप मेंशन नहीं करेंगे। पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून, जो लोग हैं वो चंद्रमा पर जा चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं। कब किया है, आप मेंशन नहीं करेंगे। पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू मार्स, नोबडी हैज एवर क्लाइम्ब दैट माउंटेन, उस पहाड़ पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा है, उस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा है, राइट। We often use the present perfect to list the accomplishments of the individuals and humanity. We cannot mention a specific time. That's really important. Okay? अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे I have done my graduation. मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, अभी कब किया है, that's नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। अगर आपने ये मेंशन किया है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कब किया है तो आप सिंपल पास्ट में बात करेंगे। जैसे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 1995, राइट। तो अगर आपने 95 बताया है मतलब आप सिंपल पास्ट में बात करेंगे, आई डिड माई ग्रेजुएशन। ओके, अगर आपने 1995 नहीं बताना है और तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे, मीन्स आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। Okay, so simply you can understand the difference between the two, simple past tense and present perfect tense. Detail में हम बाद में समझेंगे। Man has walked on the moon. Our son Apurv has learned how to read. हमारे बेटे अपूर्व ने रीड करना सीख लिया है, पढ़ना सीख लिया है। कब सीखा है, not at all important. Doctors have cured many deadly diseases. डॉक्टर्स ने बहुत डेडली डिजीजेस मीन्स बहुत डेंजरस खतरनाक बीमारियों को भी क्योर कर दिया है, ठीक कर दिया है।
कब किया है, किसी स्पेसिफिक टाइम की हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ओके, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अनफिनिश्ड एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, वहां पर हम यूज करेंगे। फिर हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, बट काम की इंपॉर्टेंस है कि कोई काम हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो कब हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। फिर अपने अकॉम्प्लिशमेंट पर, लाइक इंडिविजुअल्स और ह्यूमैनिटी के अकॉम्प्लिशमेंट्स पर, अचीवमेंट्स पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, if you are speaking in an unfinished time period also, we use the present perfect to say that an action which we expected has not happened. Okay, suppose at 11 a.m. you are saying, or I say, I met Anita this morning. Okay, आज सुबह मैं अनीता को मिली हूँ। इसका मतलब क्या, अभी भी सुबह ही है, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन सुबह ही है। ओके, 11 बजे है, मतलब दोपहर के पहले का टाइम है, तो सुबह में काउंट होगा, तो अभी भी सुबह ही है। तो आप मतलब सुबह सपोज 7-8 बजे 9 बजे आप मिले होगे। ओके, कि मैं आज सुबह अनीता को मिला हूं या मिली हूं। ओके, लेकिन अगर आफ्टरनून में या इवनिंग में बात करें, दोपहर में या शाम को बात करें, जब सुबह का टाइम खत्म हो चुका है, तो ये एक्शन जो है वो पास्ट में चला जाता है। ओके, और पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में, 1-2 लेक्चर्स के बाद में देखेंगे, पर फिलहाल आप इतना समझिए, अगर अभी भी जो अनफिनिश टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, लेकिन फिनिश टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। ओके, अगर हम 11 बजे बात कर रहे हैं तो आई हैव मेट अनीता दिस मॉर्निंग, और अगर हम दोपहर में 2 बजे 4 बजे या शाम को 7 बजे 8 बजे बात कर रहे हैं तो आई सॉ अनीता दिस मॉर्निंग। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। जया हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, जया ने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया, होमवर्क खत्म नहीं किया है। ओके, अनु हैजंट मास्टर्ड इंग्लिश बट शी कैन कम्युनिकेट, अनु एकदम एक्सपर्ट नहीं हो गई है इंग्लिश में, लेकिन वो बात कर सकती है। अवी हैज स्टिल नॉट अराइव्ड, अवी अभी तक नहीं आया है। द रेन हैजंट स्टॉप्ड, अभी भी बारिश रुकी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इफ व्हाट हैपेंड देन इज स्टिल इम्पोर्टेंट नाउ। ओके, जो पहले कुछ हुआ है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ओके, बी केयरफुल आई हैव ब्रोकन अ ग्लास, इसका मतलब ग्लास के पीसेस अभी भी आपके फर्श पर पड़े हुए हैं, तो आप किसी को भी बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखो, ग्लास टूट गया है तो तुम्हें कहीं कांच वांच ना लग जाए। ओके, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, पुलिस स्टेशन कहां पर है, मेरा पासपोर्ट खो गया है, मतलब आपको कुछ रिपोर्ट लिखवाना है, कुछ भी करना है। ओके, सो ये हुआ पहले है, पासपोर्ट आपका पहले खोया, लेकिन ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको मिला नहीं है, इसलिए आप कंप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, देन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट इन सेंटेंसेस लाइक दिस, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड लंदन, ये पहली बार है कि मैं लंदन आया हूं या देखा गया हूं। ओके, विजिट किया है। इट्स द सेकेंड टाइम ही इज आस्क्ड दैट, दूसरी बार सेम चीज वो पूछ रहा है। ओके, सो बहुत सारे रूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे आपकी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली करेक्ट ग्रामर का यूज होने लगेगा। ओके, आपको स्पेसिफिकली बैठ करके याद नहीं करना कि इस केस में सिंपल प्रेजेंट यूज करूं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करूं या प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूं। ये सब आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूं कि ताकि आपकी ग्रामर धीरे धीरे सुधरे, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो। ओके, और जब आप बार बार रीड करेंगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, now we see we often use the present perfect with already, just, yet, ever, never, still. Okay, these words refer to a time period between the past and now. Okay, for example, I have already had lunch, मैंने पहले से खाना खा लिया है। ठीक है, सपोज आप स्कूल से घर जा रहे हैं या ऑफिस से घर जा रहे हैं और घर में आपके मम्मी दादी कोई भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने खाना खा लिया है, कि तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैंने पहले से खाना खा लिया है। वो पूछे कि मैं लंच सर्व करूं, उसके पहले आप बोलेंगे हाँ मैंने पहले से खाना खा लिया है। ओके, थोड़ी देर पहले खाया है पर खा लिया है। ओके, पर अभी अभी की फीलिंग आ रही, कहने का मतलब ये कि अभी आपका पेट भरा हुआ, यू डोंट रिक्वायर एनी अदर थिंग टू ईट नाउ। ओके, आपने अभी खाना खा लिया है। हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या आप कभी चाइना गए हैं,
मतलब आपकी बात का क्या हो रहा है, पास्ट से लेकर के, सिंस योर चाइल्डहुड यू कैन से, आपके बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपकी उम्र है, मे बी आर 15, 16, 20, 25, व्हाटएवर, ठीक है, आप कभी भी चाइना गए हैं क्या अभी तक की अपनी जिंदगी में? ठीक है, सो हैव यू एवर बीन टू चाइना, हैव यू एवर बीन टू लंदन, हैव यू एवर बीन टू यूएस, व्हाटएवर, आप कभी भी यहां पर गए हैं क्या? दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन सेंटेंस यू नीड इन योर डे टू डे लाइफ। ठीक है, किसी को भी पूछना हो क्या कभी आपने ये किया है, कभी आपने वो किया है, कुछ भी, हैव यू एवर सीन अ व्हाइट लोटस से, ओके, have you ever been to London, have you ever met Shah Rukh Khan, have you ever met maybe Lata Mangeshkar, whatever, ठीक है, आपने कभी इसको देखा है, उसको मिला है, यहाँ पर गए हैं, वहां पर गए हैं, कुछ भी, ओके, तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज आएगा, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, ही इज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अभी अभी अपना काम खत्म कर दिया, नाउ शी इज फ्री, प्रिसाइसली उसका काम हो गया है, अभी वो कुछ भी करने के लिए आगे कुछ भी करना चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हुआ है, थोड़ी देर पहले मीन्स बहुत थोड़ी सी देर पहले, ओके, बहुत लंबा ड्यूरेशन हमें नहीं देखना है कि 2 घंटा 4 घंटा पहले, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बस ऐसा हो सकता है कि उसने वो अपना काम फिनिश करके बाहर आई हो या बाहर आया हो, सो ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, आई हैव नेवर सीन अ व्हाइट टाइगर, मैंने एक व्हाइट टाइगर नहीं देखा, या एक कह सकते सफेद ये जो टाइगर है, बाघ या चीता जो भी है, मैंने नहीं देखा, मतलब मेरी अब तक की जिंदगी में मैंने कभी भी व्हाइट टाइगर नहीं देखा है। ओके, suppose I have never met Amitabh Bachchan, suppose I have never been to China, I have never been to London, okay, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर एक फीलिंग बताई गई है। ओके, थोड़ा एग्जांपल्स ले लेते हैं हम इन दोनों सेंटेंसेस के यूज के लिए। हैव यू एवर बीन टू चाइना? नो, और आई कैन से आई हैव नेवर बीन टू चाइना। ओके, or you can say have you ever visited the Chinatown? No, or we can say I have never visited the Chinatown. Okay, suppose maybe if the Chinatown is a restaurant and your friend is asking कभी Chinatown गए हो क्या, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं Chinatown कभी भी नहीं गया हूँ। ओके, तो आपने कभी ये काम किया है क्या, तो have you ever, and आपने ये काम कभी नहीं किया है तो I have never। ओके, सो दोनों सेंटेंसेस, दोनों पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए। ओके, फिर when do we use yet? We use yet to say that something hasn't happened. कोई काम ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ है। Okay, it gives a negative sense. Example, it's 12:15. I haven't had my lunch yet. 12:15 बज गए लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। Okay, we use still to emphasize that we have waited a long time. Okay, still हम कब use कर सकते हैं? It's 2:45. I still haven't had lunch. ओके, मैंने अभी तक भी खाना नहीं खाया और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, देखिए ऑलमोस्ट 2:45 बज गया और लंच नहीं हुआ, इसका मतलब काफी लंबे टाइम तक, जनरल लंच का टाइम होता है 11:30 से लेकर के 1-1:30 बजे तक। ओके, जनरल लंच टाइम, तो बहुत ज्यादा देर हो गई, 2:45 बज गया है, तो मैंने अभी तक भी लंच नहीं किया है। ओके, येट और स्टिल दोनों वर्ड्स जो है आपकी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में काफी बारी यूज आएंगे, सो बी prepared. We usually put already, ever, just, never directly before the past participle. Okay, past participle that means verb की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के पहले ही हम ये सारे वर्ड यूज करते हैं, already, ever, just, never, right? एग्जाम्पल वापस देख लेते हैं। He's already passed the exam. Already ये past जो है वो past का थर्ड फॉर्म है, past participle फॉर्म है, इसके इमीडिएटली पहले already रखा है। ओके, Have you ever climbed a mountain? क्या कभी कोई पहाड़ पर चढ़े हो? Climb is थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके बिल्कुल पहले ever आया है। ओके, आप कभी भी पहाड़ पर चढ़े हैं क्या? ओके, तो ऑलरेडी और एवर हम कहाँ यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की इमीडिएटली पहले। आपको लर्न करने की या बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बोलते बोलते अपना प्रैक्टिस में आ जाएगा, लिखते लिखते अपना प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, सब आपसे डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ओके, फिर जैसे जैसे बोलेंगे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। वी यूजुअली पुट येट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, आई हैवंट गॉट द की येट, मुझे अभी तक भी चाबी नहीं मिली है। ओके, वी यूजुअली पुट स्टिल बिफोर हैजंट एंड हैवंट। नेगेटिव सेंस में हम जब भी बात करते हैं
यूज स्टिल, स्टिल और हम कहा रखेंगे हैजंट और हैवन के पहले। ही स्टिल हैजंट पेड मी, उसने अभी तक मेरे को पे नहीं किया है। दे स्टिल हैवंट फोन, अभी तक भी उन्होंने फोन नहीं किया है। तो ये सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पे बात करें ना, ये सब सेंटेंसेस आपको एवरीडे लाइफ में यूज आते ही हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप बोल रहे हैं उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, you'll feel more comfortable in your English speaking in your day to day life, okay। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा है कि सबसे ज्यादा बोलने में ये यूज आता है, क्योंकि जनरली हम अभी की जो बात करते हैं, सुबह शाम दिन रात की, इसमें अभी अभी की फीलिंग आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की का यूज बहुत ज्यादा है, ओके। और देखते हैं, वी ऑफन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ फोर एंड सिंस, ठीक है। फोर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, ओके, लेंथ और पीरियड ऑफ टाइम, एंड सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम, point and 4 is period, okay। now let's see some examples। I have lived in Delhi for 10 years, मैं 10 साल से दिल्ली में रहता हूं, okay। now आप एक चीज ध्यान से समझिए, for, okay। 10 year क्या है, 10 साल क्या है, एक ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो जब पीरियड ऑफ टाइम आता है तो 4 यूज करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जैसे ही हैज लिव्ड इन मुंबई सिंस 1995, वो 1995 से मुंबई में रहता है, ओके। अभी भी रह रहा है, 1995 से रहता है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट आया है कि 1995, सो पॉइंट से अगर हम बात करते हैं तो सिंस यूज करते हैं, टेन्योर की, पीरियड की बात करते हैं तो 4 यूज आता है, ओके। ये बहुत लोगों को आप मिले होंगे जो 4 और सिंस दोनों में काफी मिस्टेक करते हैं, कहां पर 4 यूज करना है, कहां पर सिंस यूज करना है, वो क्लियर नहीं होते, ओके। कितने लोग ऐसा भी बोलते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 10 years, सो ये गलत है। 10 years अगर आ रहा है, 5 years अगर आ रहा है, ड्यूरेशन अगर आ रही है तो 4 यूज होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो सिंस यूज होगा, ओके। ही हैज लिव्ड इन मुंबई फॉर 1995, वो एक मीनिंगलेस सेंटेंस है, कोई मतलब नहीं, गलत है, ओके। जब सिंस यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड सिंस, duration, or we can say time period, then 4, okay। so for 5 hours, for 6 weeks, for 9 months, देखिए 5 hours means duration, 6 weeks means duration, 9 months means duration, 2 years means duration, और point of time August 10, particularly August 10 की हम बात कर रहे हैं, my last birthday, उस पर्टिकुलर दिन की, दिवाली उस पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम। आई वॉज 6 years old, 6 year old जब आप थे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, ओके। सिंस मॉर्निंग, सिंस आई वॉज बोर्न, ओके। सो सिंस कहां कहां पर यूज करना है और 4 कहां पर यूज करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 4 फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। Now let's see, we often use negative present perfect verbs for for and since. Examples, I haven't played chess since 1999, okay। 1999 से मैंने चेस नहीं खेला, मतलब अब काफी लंबा टाइम हो गया कि मैंने चेस नहीं खेला है, ठीक है। अब अगर 1999 लिखा है तो सिंस लिखेंगे, ओके। और अगर टाइम पीरियड दिया है तो 4 लिखेंगे। मैंने 2 सालों से चेस नहीं खेला है, तो मैंने 2 सालों से चेस नहीं खेला, तो 2 साल इज अ टाइम पीरियड, तो यहां पर 4 यूज किया। देखिए एक ही सेंटेंस है लेकिन दोनों की फ्रेमिंग अलग अलग है, ओके। आई हैवंट प्लेड सिंस 1999, मतलब 1999 से मैंने चेस नहीं खेला है, और मैं 2 साल से चेस नहीं खेला हूं, ओके। वी कैन नॉट यूज अ प्रेजेंट सिंपल इन दीज सेंटेंसेस। I study English for 5 years, okay। Now I study English for 5 years, that is a sentence in simple present, okay, but that's wrong, okay, that's wrong। आप क्या बोलेंगे, I have studied English for 5 years, मैंने 5 सालों तक इंग्लिश पढ़ी है। कहने का मतलब ये कि आपने यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया। जब टाइम फिक्स कर दिया है तो वो आपका रूटीन या आपका रिपीटेड एक्शन या कुछ ऐसा नहीं हुआ, ओके। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, तो ठीक है कि वो प्रेजेंट सिंपल होता, लेकिन मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ता हूं, ये गलत है। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूं या मैंने 5 साल इंग्लिश पढ़ी है तो सही है, ओके। तो क्या आएगा, आई हैव स्टडीड। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ता हूं, आप ऐसा हिंदी में भी नहीं बोलते। कभी बोला आपने, नहीं, कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ता हूं। आप बोलते तो क्या बोलते, मैंने 5 साल इंग्लिश पढ़ी है, या मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूं,
ठीक है, मैं 5 साल इंग्लिश पढ़ता हूं, दैट इज गलत। तो हिंदी में भी गलत है, इंग्लिश में भी गलत है। आई लिव इन दिल्ली सिंस 1996, मैं 96 से दिल्ली में रहता हूं, ये भी गलत है, क्योंकि आपने टाइम दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी आप दिल्ली में हैं, इसका मतलब आप जो एक्शन पहले शुरू हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है। ओके, कब तक कंटिन्यू रहेगा ये कह नहीं सकते, पर अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हुआ, बल्कि अभी तक ये काम कंटिन्यू है, इसलिए इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1996। 96 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस यूज किया है, और ये एक्शन अभी तक कंटिन्यू है। शुरू पहले हुआ था पर अभी भी वही चालू है। आप पहले कभी से दिल्ली में रहना शुरू हुए थे, सपोज 1990 से आप शुरू हुए थे, 1996 से शुरू हुए थे, और अभी सपोज 2013-14 चल रहा है, तो अभी भी आप दिल्ली में ही हैं, तो आप 1996 से दिल्ली में हैं। ओके, ना क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग, यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, एंड आंसर में फॉर एंड सिंस यूज होता है। हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश, कितने टाइम तक तुमने इंग्लिश पढ़ी है, या तो 10 साल तक पढ़ी है, आप ऐसे कोई ड्यूरेशन दोगे, और अगर आपने कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताया तो आप सिंस बोलोगे, सिंस 1995, राइट। हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश, फॉर 10 years और सिंस 1995, राइट। सपोज हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन इंडिया, so what your answer will be, for 10 years or maybe since 2012, okay। और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, वैसे काफी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी एक दो एग्जाम्पल्स और बताती हूँ मैं आपको। सपोज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, आप कितने साल, आपकी शादी को कितने साल हो गए, ओके। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, ओके, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, और आई हैव बीन मैरिड, अब कितने साल हो गए तो आपको ड्यूरेशन ही बताना पड़ेगा कि 10 साल हो गए या 5 साल हो गए, ठीक है। सो आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years और आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, ओके। और जैसे अब बात करें, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वॉचिंग टीवी, वो कितनी देर से टीवी देख रहा है। सपोज आप घर में कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर है, कोई छोटा बच्चा, या आप पेरेंट्स या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी, तो सपोज आप छोटे बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, या सपोज आप रवि के लिए पूछ रहे हैं कि रवि कितनी देर से टीवी देख रहा है, राइट। सो हाउ लॉन्ग हैज रवि बीन वॉचिंग टीवी, और हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वॉचिंग टीवी, कितनी देर से वो टीवी देख रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ही इज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। कोई भी आपके फैमिली में आंसर देगा, या आप क्वेश्चन पूछ रहे तो कोई दूसरा आंसर देगा, तो क्या बोलेगा, ही इज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock, या ही इज बीन वॉचिंग टीवी फॉर मे बी 2 hours, ओके। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो फॉर यूज होगा, और अगर आई एम सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज होगा, और ड्यूरेशन है तो फॉर यूज होगा, ओके। So friends, we have discussed a lot in this session on present perfect tense. In the next session, we'll take questions and exercises based on present perfect tense. Okay? ये बहुत important टॉपिक है, तो इसके लिए हमें काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पेशली नेक्स्ट सेशन में हम इसकी काफी एक्सरसाइजेस लेने वाले हैं। तो ये सेशन अच्छे से रिवाइज करिए, हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं, ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, वंस अगेन, बाय बाय।